started, right? So as we discussed, in the last session, that we should start from the basic of mean stack. So in basic of mean stack, we will be having what do you call the basic of Angular first, then we'll have basic of Express first, then we'll have basic of MongoDB first, and then we'll jump on the project. So in next 2 3 weeks, 3 weeks, 4 weeks, right, we will be focusing on the basic. At least 2 3 weeks we'll be focusing on the basic functionality of mean stack, and then we'll start the project. Okay, and accordingly, based on your basic information, we'll jump in the in the project. We'll allocate the team, right? If some of you are, let's say, not ready for the project, we'll invest little more time, correct? And let's say people who think that after 2 weeks, 3 weeks of basic information, you guys are ready for the project, so we'll start a project as well. And in the project also, don't worry. In the project also, you don't worry. You will be having the coordinator with you, correct? You will be having a project coordinator with you, and that person will guide you about the project. So any doubt, any question you have? Do you agree with this plan? I wanted to know Yes, yes sir. or no from all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, no. There are few people who are not from the BTech background, or maybe have very little knowledge about the IT and all. So is this plan okay for you as well? Yes, yes, okay. No problem. Right? All good? Okay. Okay. Good. Good. So now what we do is now what we do is, as I said, we'll start from the Angular basic. So yesterday we have seen just the topics of Angular. Topics of Angular means what exactly we are going to study, we are going to read, we are going to practice, right, in Angular. Again, I would repeat the same thing. Don't take this one as a course, because if you go with the course mentality that I need to learn it, trust me, there are hundreds of YouTube tutorials itself by different people, teachers, faculties, where all the basic has been given. I mean, you can understand the MongoDB or mean stack or Express.js or Angular, right? So there are already course available, free of cost available, correct? Why you came to this internship, don't forget, you need to get the hands-on information. Hands-on information doesn't say you need to get the practice, you need to get the project practice. Are you getting my point? You need to work on the live project which is built for client. So when we say project built for client, means you will be having errors, you will be having throwback from client, that this is not correct, that is not correct. You will be handling client meeting as well. You will be working on the client requirement live, correct? You will be working on the project which will be deployed. You will be sharing the URL with others. You will be putting all these things in your resume. If you take this one as a course, then trust me, it will be like a academic study only for you, and you will not be a confident chap in front of interviewer when you will have your day. Are you getting my point or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. You have already, I would not take the name, I because I don't have permission maybe. So you already have two of the candidates participant in this group who are already working professional, correct? So sometime if they want, they can share their experience with you guys, that entering into the company and maintaining your job is a very difficult task, correct? If you don't have the right technology with you, or if you don't enter it correctly, right team? So please focus, and please come to the session in the mentality that you are a part of a project. You are a part of one IT company called Scorpius Solution, right? You are here to work under the project, not to learn mean stack. You are here to develop a project in mean stack, correct? A project which will deploy for some client.
Now the question is, you might be having, this question. आप लोगों को ये doubt होगा, ये question होगा कि अगर basic नहीं पता होगा तो project कैसे होगा? So for that, I am assuring you that you will be having the basic knowledge. Of course, basic knowledge के बिना आप किसी project को कैसे कर सकते हो? You cannot do, right? Agree, team? Yes. So basic knowledge होगी, सब कुछ होगा. बट आपका मेन टास्क बेसिक नॉलेज लेना नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट. बेसिक नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी मिलेगी. मैं सजेस्ट कर देता हूँ कुछ चैनल्स आपको, राइट? आपका मोटिव यहां पर है, योर मोटिव इज टू ट्रेन योर सेल्फ, बिकम अ स्किल्ड प्रोडक्ट, राइट? रेडी प्रोडक्ट फॉर मार्केट, कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट पे काम करो और उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं हो. व्हेन आई से किसी की जरूरत नहीं हो, मींस यू डोंट नीड इवन मी एज वेल और माय ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. You should be independent and you should be, good enough, trained that you can get a job by your own. That is the idea of you coming to these sessions or coming to the internship program. Are you getting my point? Yes, sir. Is it clear to all of you? Yes, sir. अगर कोई second thought है तो please tell me. One more important point. इंटर्नशिप भी, वैसे मैं ये सब वेबिनार में बोलता हूँ, बट जस्ट टू मेक यू रिमाइंड, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग एंड व्हेन वी स्टार्ट वी आर नॉट गोइंग टू लुक बैक. ओके, तो जब आप इंटर्नशिप भी किसी और कंपनी में करते हो, जैसे इन्फोसिस हो गया, बहुत लोग बच्चे बोलते हैं ना कि हमारा तो ऑलरेडी टीसीएस में इंटर्नशिप हो गया, इन्फोसिस में हो गया, इसमें हो गया, उसमें हो गया, बड़ी कंपनीज में हो गया. डू यू ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट दे डू? आपको पता है, आइडिया है आपको? टीम, आप लोगों को आइडिया है किस तरह के इंटर्नशिप प्रोजेक्ट पे वो काम करते हैं? No, sir. No? No, sir. Okay, so Mayuri, do you have idea? Mayuri, do you want to, share your thought in just 30 seconds, please, if you can? It's a request. Like TCS and Infosys as doesn't have internship, they did give you job, then they have a training period. In training period, it's basically all theoretical knowledge, but that doesn't matter. You get a project based on that theoretical knowledge. Maybe they teach you .NET in a very good manner and everything, but you get project on testing or something else. So it's not very feasible. It's not like if you take training from Infosys, TCS, and everyone, companies like these, it's not feasible until unless you put it into work. Like if you don't make a project, if you don't work on it, it's not mean anything. That's all. Yeah, so we have, so as she said कि internship नहीं होती, वैसे होती है internship मयूरी, but जो freshers को लेते हैं ना, they usually put them on support project. Am I right, Mayuri? Actually, it's not like everyone in support project, but yeah, somewhat it's luck and somewhat it's, so I think Correct, it's sort correct, of a luck correct. only. Somewhat So people get a very good project and some people always get a support project or didn't get a project at all. For most of them, maybe you are lucky one who is not having the support project, but if you guys all ask your colleagues और ब्रदर सिस्टर्स और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछोगे तो जो ये कंपनीज हैं इनके पास सारे मेनली सपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं. करेक्ट. तो इंटर्नशिप भी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट प्रोजेक्ट पे इंटर्नशिप होती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट वी आर लकी in the sense means we are in very good shape that we are having the live project, that too in latest technology. For example, I recently finished one contract with Infosys, Infosys Bangalore, this one Electron City. तो उनका एक प्रोडक्ट है एटना इंश्योरेंस. एटना इज अ यूएस कंपनी, एटना प्रोजेक्ट. तो आप यहाँ कह सकते हो कि मैं लकी था, तो मुझे एक नया प्रोडक्ट जो है उनको मुझे जो है मिला, जिसमें मैं यूआई आर्किटेक्ट था. Right, just now I finished it. I can even show you the mockups and the mail links also if you want. Right? तो जैसे मुझे मिला, पर हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है. सो इनिशियल लेवल पे आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलते हैं. सपोर्ट प्रोजेक्ट से आपका लॉस क्या होता है कि यू लूज बेसिकली द शार्पनेस. आप आते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ कि हम आईटी में आएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे या डेटाबेस डिजाइन करेंगे, एपीआई बनाएंगे, राइट? इस तरह से इनिशियली आपको मिलता है सपोर्ट प्रोजेक्ट. तो अगर आप 1 साल 1.5 साल भी अगर सपोर्ट प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, देन यू लूज दैट शार्पनेस, बिकॉज अब आपके जो पुराने आपके कॉलेज के स्किल्स हुआ करते थे
वो भी 1.5 साल के बाद, 1.5 years के बाद वो भी फिनिश हो जाते हैं. डू यू अग्री और नॉट? आप जावा में, डॉटनेट में, पीएचपी में लेट्स से कॉलेज में किया और आप बहुत शार्प हो, राइट? और आप इन कंपनीज में गए और आप सपोर्ट प्रोजेक्ट पे चले गए. उसके बाद 1.5 year के बाद क्या हुआ? वो शार्पनेस जो आप में थी, जो वो एज था, वो भी लूज हो गया. करेक्ट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रेट ओवर हियर इज कि ये बहुत अच्छी सिचुएशन है हम लोगों के साथ कि वी आर हैविंग अ प्रोजेक्ट, अ प्रोडक्ट बेसिकली विच वी नीड टू वर्क ऑन, और ये सेलेबल प्रोडक्ट है. इसका एक क्लाइंट है, वी नीड टू शोकेस इट टू द मलेशियन मार्केट. करेक्ट. तो अगर अगर हमें मलेशियन मार्केट में इसको प्रोजेक्ट करना है तो मतलब ये उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए. डू यू एग्री टीम? अगर हमें मलेशियन मार्केट या साउथ ईस्ट एशियन एशियन मार्केट में शो करना है तो ये उस लेवल का होना चाहिए. मतलब हम उस लेवल का काम करेंगे. मतलब इन शॉर्ट, you will do that level, that level of work. Correct. So feel proud that these kind of product or Yes, projects sir. we are going to work on. Okay. And Okay, जो sir. कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ, जो कॉन्फिडेंस आएगा इसके बाद, ये मेरी रिस्पॉन्स, मेरी गारंटी है कि you seriously don't need anyone after these projects. You don't need any help after these project. आप खुद ही, आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी. you will start cracking the interviews as well based on your knowledge. Again, आपको यहाँ से क्या गैदर करना है? Hands on experience on the project, knowledge on the what do you call, latest technology, and above all, confidence. Correct. Right. A tank full of Yes, confidence sir. कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता हूँ. राइट. सो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस नोट. सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सो बेसिक में I have asked you to install few things yesterday. Have you have you done that or no? If not, Yes, we'll sir. do it parallelly. Yes, sir. Done. No, but I wanted to know who has not done it. आप में से किसने नहीं किया है? कौन कौन रह गया है? So I would like to show in front of you guys like कैसे इसको आप कर सकते हो, कैसे आप ये सॉफ्टवेयर या ये सब चीजें करोगे. So anyone who has not done it, that is completely fine क्योंकि मुझे ही कराना था. But कोई ऐसा जिसने नहीं किया अभी तक? Yes, sir. अच्छा टीम, you have to be vocal, correct, and you have to respond back, right? And the session should be interactive. It should not look like that one person is speaking and others are listening. तो अगर नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, it's okay, no problem. Correct. But I want everyone to participate. वो कॉन्फिडेंस जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो तभी आएगा आपको. अगर आप चुप बैठोगे एंड इफ यू डोंट स्पीक अप, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. बिकॉज देन यू विल लूज द पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. यू विल लूज द हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. सर अभी मेरा नहीं हुआ. गुड. गुड. और किसका नहीं हुआ? In companies, in IT, we stand and speak loudly कि ये हो गया है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है तो ये इसलिए नहीं हुआ है और इसमें इतना टाइम लगेगा. Correct Mayuri? That's how we work in team, right? Yes. In team we respond back. अगर कोई काम नहीं हुआ है तो there must be a reason behind it. तो हम openly बोलते हैं कि ये काम नहीं हुआ है, it is going to take these many man hours, right? These many hours. और इसका Yeah. ETA means expected time of action. Competition. इसका जो है completion, sorry. तो इसका जो है ETA इतना है, 2 hours में होगा या 3 hours में होगा या 8 hours में होगा. हम loudly उसको बोलते हैं, टीम को बताते हैं. करेक्ट. तो वही कल्चर आई वांट इन दिस टीम एज वेल. डोंट ट्रीट दिस वन एज अ बैच, इट्स अ टीम. करेक्ट. अगर कोई काम हुआ है तो ठीक है, गुड. अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम बिहाइंड इट. तो वी शेयर द प्रॉब्लम so that others will not have the same problem. Okay. It So will get the on work this, done fast. exactly, it will get the work done faster. So let me just share my screen. Let me know once you are able to see my screen. Yes, sir. We can Yes, see. it is visible. One second. One second.
Just one second. Yeah, now I'm sharing again. And please don't treat me, like your teacher or trainer. I am neither a teacher nor a trainer. I am basically an R&D head in Scorpio Solution. So I handle the project basically. Okay. So there is probably nothing which you cannot share with me. Correct? तो आप Yes, sir. अपनी हर तरह से प्रॉब्लम्स जो हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल यू कैन शेयर विद मी. ओके. या तो मैं आपको पकड़ लूंगा कि आप झूठ बोल रहे हो. राइट. Otherwise, I will give you a real-time solution of your problem. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Right? Yeah. Okay. Good. So let me just start with the node. So what I was telling yesterday is basics, absolutely basic. आपको start कैसे करना है, घुसना कैसे है, start कैसे करना है, right? So very first thing that I want is in Google, if you search simply Node.js, तो Node.js अगर डाउनलोड करते हो, मतलब सॉरी सर्च करते हो, you will get a link called Node.js org or Node.js.org. Yeah, Node.js.org. So Node.js मेरा ना मतलब what basically Node.js play a role is Node.js is basically plays two very important role. One, it acts like a server. एक तो ये server की तरह काम करता है. तो जैसे आपका Tomcat, Apache, IIS server सुना होगा. सुना किसी ने? और अगर किसी ने नहीं सुना तो पहले वो बताए. अगर नहीं सुना तो मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा नहीं, या मैं एग्जांपल दूसरा दूंगा. किसने Tomcat, Apache, IIS सर्वर सुने? सिर्फ सुने पूछो. सुने? Have you heard about these servers? Yes, sir. Yes, yes. Yes, किसने sir. नहीं Yes, सुने? sir. गुड गुड. किसने नहीं सुने? एनीवन? आरुषि तुमने नहीं सुने? No, sir. नो प्रॉब्लम. कोई और जिसने नहीं मैंने सुने? आरुषि लाउड, आई मीन स्पीक लाउडली. नहीं सुने तो नहीं सुने. इट्स नॉट कंपल्सन दैट यू हैव टू you need to know what I'm asking. Okay? Okay, If sir. you don't speak, you will never able to get your doubt resolved. Trust me. If you don't ask, you will never get the proper answer. कोई 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 क्यों आंसर देगा तुम्हारे को? When why I will give you answer if you're not asking me a question. Right? So speak up. ये लाइव सीडी कौन है? सीआईडी कौन है? What is your name? You have raised your hand also. Okay. Anyone else जिसने सर्वर नहीं सुना? हाँ, मैंने भी नहीं सुना. कौन 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 कौन? मैं अर्जुन जी बोल रहा हूँ. What is your name? Sorry. अर्जुन कुमार. Okay. No problem. Okay. So server क्या होता है आपका? What is your server is? Server is basically a place where you host the website or you host the web application. Are you getting my point? Server is the place where you host the web application. जैसे Facebook है. अब Facebook आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. यू आर इन यूके, यूएस, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एनीवेयर across the globe. Wherever you are, you can basically access Facebook, Gmail, right? Correct? Outlook, YouTube. Yes, Is sir. that correct or not? तो तुम्हें क्या लगता है कैसे कैसे एक्सेस कर पाते हो? How basically people are able to access this these applications? WhatsApp, best example, WhatsApp. करेक्ट. तो ये सब कहाँ होते हैं? मतलब आप कैसे उनको एक्सेस कर पाते हो? तो ये जो होते हैं ये सर्वर्स पर होते हैं. सर्वर्स विच आर ग्लोबली अवेलेबल. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करूं तो सर्वर में आपके पास ऐसा क्या खास होता है? मतलब सर्वर ऐसा क्या होता है? मतलब ऐसा अगर मैं पूछूं, सो व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन अ सर्वर एंड योर लैपटॉप? क्या डिफरेंस होगा अगर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें एग्जांपल को? तो क्योंकि सर्वर भी सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, तो तुम्हारा भी तो कंप्यूटर ही है, तो क्या डिफरेंस होगा? Laptop is a physical entity, like it's a physical thing. It can be available only at one side, one place. ओके.
तो मैं क्या अपने लैपटॉप को सर्वर नहीं बना सकता? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? Yes. We can make it as a server. ओके, देन अगेन माय सेम क्वेश्चन टू यू एंड टू ऑल, डिफरेंस क्या हुआ सर्वर में और तुम्हारे लैपटॉप में? तुम्हें क्या लगता है क्या डिफरेंस हुआ होगा? अब मैं जब ये क्वेश्चन एक्चुअली में कंपनी में जो काम करते हैं एम्प्लॉइज उनसे ही पूछता हूँ ना, सो व्हाट दे से इज सर्वर हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है और लैपटॉप हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। तो Server in a basically way it is HTTP request accept करता है, तो I mean if you परफेक्ट। सो लोग ऐसा क्या करते हैं कि सर्वर हाई कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें बहुत बड़ी हार्ड डिस्क होती है, इट हार्ड डिस्क इज इन मेनी टीबीज, उसकी रैम बहुत ज्यादा होती है और हमारे लैपटॉप उस कॉन्फ़िगरेशन का नहीं होता है। सो दैट इज सेकेंडरी। तो तुम अपने अपने लैपटॉप को भी सर्वर बना के इस पे अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो और द होल वर्ल्ड कैन एक्सेस इट, पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है। तो जब उसमें यूजर्स बहुत ज्यादा ऐड होंगे तब टेंशन होगी क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप एक अपनी एप्लीकेशन बनाओ, अपने लैपटॉप पे होस्ट करो, अपने लैपटॉप को सर्वर बनाओ, तो पूरा वर्ल्ड जो है आपकी एप्लीकेशन को देख सकता है, उसको यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है? जब बहुत सारे यूजर्स उसमें ऐड होंगे तो तुम्हें उसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी होगी। सो कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर इट्स स्टेप 2 फॉर सर्वर। It's a step 2 difference between server and your laptop. First difference is your laptop is not over the static IP. Are you getting my point? आपका जो लैपटॉप है, आपका लैपटॉप sir. स्टैटिक आईपी पर नहीं है। सर्वर का एक स्टैटिक आईपी होता है, जैसे आप फेसबुक है, अब facebook.com तो उसका डोमेन है, facebook.com तो डोमेन नेम है, बट एक्चुअल में facebook.com is nothing but a IP address, static IP. Team, is it clear to you or not? Yes, sir. Sir, static means static IP. Static IP means एक अकेला IP, अनचेंजेबल IP जो वर्ल्ड वाइड एक ही है, जो किसी और का नहीं है। Okay, sir. जैसे आपकी जीपीएस लोकेशन, राइट? लेट्स से सिटी स्क्वायर 4th Avenue flat 104 is there in, let's say, Mumbai also, and is there in New York also, correct? तो अगर मैं नाम से जाऊंगा सिटी स्क्वायर 4th Avenue फ्लैट 106 तो क्लैश होगा। लेकिन अगर उसके आईपी से जाऊंगा, गूगल लोकेशन के साथ जाऊंगा, जीपीएस लोकेशन से जाऊंगा, तो जीपीएस लोकेशन मुझे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताएगा, राइट? Yes, sir. Correct? Yes, sir. Sir, Similarly, we sites पर can भी, call it unique. हाँ, स्टैटिक आईपी, यूनिक आईपी, करेक्ट, यूनिक आईपी। तो अगर आपके सर्वर के पास स्टैटिक आईपी है तो आप उस स्टैटिक आईपी पर, करेक्ट, अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर दो, राइट? एंड द होल वर्ल्ड कैन सी योर एप्लीकेशन, कैन एक्सेस योर एप्लीकेशन, सिंपल। ये क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. especially people who didn't know about server. अच्छा, क्या क्लियर नहीं हुआ? someone says no sir, so क्या क्लियर नहीं हुआ? सर होस्ट कैसे करते हैं? अब ये तो सेशन का टॉपिक नहीं है ना, we don't need to know the server integration and everything, right? What I ask you is server, do you now understood what is server and Yes. why your laptop is not a server? Okay. अच्छा, अब एक और पॉइंट लेते हैं, थोड़ा सा 30 seconds more. हाँ, you have heard about the cloud computing, correct? Clouds everywhere, it is clouds, right? Correct? तो Yes, sir. क्लाउड, हाँ, सो सर्वर तो ऐसे हो गया ना कि जैसे मेरा एक डेटा सेंटर हो गया, नहीं इतना हैवी टर्म यूज नहीं करते, सिंपल रखते हैं। जैसे मेरे पास सर्वर्स हैं और मेरे पास एक रूम है, मेरे रूम में बहुत सारे हार्ड डिस्क और रैम्स लगी हुई हैं और मैंने अपने पूरे रूम को, मतलब मैंने पूरा सर्वर सेटअप लिया हुआ है। तो मेरे पास मल्टीपल साइट्स जो हैं लोगों की चल रही है मेरे सर्वर पर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मल्टीपल साइट होस्ट करनी है मुझे, तो मुझे मल्टीपल स्टैटिक आईपी चाहिए। इज दैट करेक्ट और नॉट? Yes, sir. इज दैट करेक्ट और नॉट? Yes, एक sir. एक एक फेसबुक भी मेरे पास चल रहा है, एक एक गूगल भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, इस तरह से सारी साइट्स मेरे पास चल रही हैं, तो मैं एक सर्वर प्रोवाइडर हूँ।
सो क्लाउड जो है वो सर्वर प्रोवाइडर से कैसे डिफरेंट होता है? अच्छा, अगर मैं again maybe it is little high for you for the first session, but just एक छोटी सी information आपसे पूछता हूँ. Correct? I will not go in depth, probably will go in depth after some time, after some sessions. But एक cloud में और server में क्या difference होता है आपके हिसाब से? क्लाउड ग्लोबली अवेलेबल रहता है, जैसे कि वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होता है, और एक मतलब किसी एक क्लाउड पे अपना कोई वेबसाइट होस्ट करते हैं तो वो अपने लगभग सारे रीजन्स में होस्ट कर देता है, जो कि ग्लोबली अवेलेबल हो जाता है। और सर्वर नॉर्मली होम सर्वर आप नहीं बता सकते सर, सॉरी। हेलो No problem. हेलो हाँ बोलो. Yes. हाँ सर्वर पे हम किसी भी वेबसाइट को हम होस्ट कर सकते हैं, एंड उस पर हम किसी भी वेबसाइट को मान लें इंडिया से बाहर भी या फिर इंडिया के इन भी, हम एक ही सर्वर पर हम सारे वेबसाइट डाल सकते हैं। आजकल हम देखते हैं GoDaddy पे हमें सर्वर मिलता है जो एक ही सर्वर पर नॉर्मली 10 to 30 वेबसाइट हम होस्ट कर सकते हैं। एंड मोस्टली लोग तो आजकल तो VPS सर्वर यूज करते हैं, वर्चुअल सर्वर। Anyone else? अच्छा, क्लाउड का मतलब क्या होता है वैसे? क्लाउड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड? सिंपल क्लाउड, नॉट क्लाउड सर्वर एंड ऑल. क्लाउड का क्या मीनिंग है? बादल. Not that cloud. I mean, technically cloud means what? Virtual means we can PC, say clone. we can say virtual system. Virtual system. What else? And maybe clone. Sir, basically clouds are not host, but servers act as host. Sir, a place where we can get our files anytime. That you can say is a smart answer. What else? Or Online storage space. Online storage space. Good. अब समझ में आ रहा है? हाँ. क्लाउड का क्या मीनिंग है? क्लाउड और सर्वर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस मींस आई एम श्योर, आई नो इसको प्रोजेक्ट बहुत बड़ा किया जाता है, बट अल्टीमेटली क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सर्वर्स कमिंग टुगेदर, राइट? और उसको हमने रीजन में डिवाइड कर दिया. अब जब क्लाउड आता है तो हम AWS की बात करते हैं, तो AWS मतलब Amazon ने क्या किया हुआ है? Amazon ने अपने रीजन्स बनाए हुए हैं, जैसे उसने 12 रीजन्स बनाए हुए हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये इतना ही होता है. 12 रीजन्स बनाए, हर रीजन में उसके पास बहुत बड़े सर्वर या डेटा सेंटर्स होते हैं, या सर्वर्स होते हैं, कह सकते हो, राइट? और उसने डिफरेंट साइट्स, एप्लीकेशंस उन सर्वर पे होस्ट की हुई है. बेस्ट पार्ट ये है कि आप कहीं से भी उनको एक्सेस कर सकते हो, राइट? दैट इज वन थिंग. सेकेंड, वर्चुअल स्पेस दी हुई है. सर्वर पे वर्चुअल स्पेस नहीं होती है, बट क्लाउड पे वर्चुअल स्पेस होती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है. क्या अरेंजमेंट किया होगा तुम्हारे हिसाब से? उसने कुछ सर्वर्स जो हैं आपको अवेलेबल करा दिए होंगे कि यू कैन गो टू दीज सर्वर्स, करेक्ट? राइट? यू कैन गो टू दीज सर्वर्स, log in and do your computing, right? Okay, this is just a gist. I mean, Yes, sir. when I will explain, node as a server, I will go through with all these things, right? Yes, sir. Yes. One second. One second. So okay. So now server, get back to the same what do you call topic where we started from. So your server is a place where basically you host your application. You host your application. Hello? Yeah, is my voice audible? Yes, sir. Just one second.
just one second. हेलो नावेद, ये नावेद या इसके अनीश के कुछ चेंजेस आए हैं. प्लीज मर्ज हिज रिक्वेस्ट एंड गिव अ बिल्ड टू डेमो अर्जेंटली. लू इज ऑन द वे and he is going to demonstrate the demo environment immediately. Shruti just now called me. Yeah, you need to merge the latest, you need to merge latest request PR from this guy Anish. Yes, merge it. Correct. Give build to demo environment. Right. Lou is already on the way, and just inform Shruti. Bye immediately, please. Thanks, Navid. Yeah. So as I said, server is a place where you host your application, your website, web application. तो मैं क्या, हमने कहाँ से डिस्कशन शुरू किया था कि ये गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये किसी न किसी सर्वर पे होस्टेड है. करेक्ट. और तो हाँ, तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अपने नोड से एक्चुअली. सो बेसिकली नोड, राइट, बेसिकली नोड इज नथिंग बट योर सर्वर. सो जैसे अब फेसबुक है, तो फेसबुक मेरे हिसाब से यूनिक्स या लिनक्स काइंड ऑफ सर्वर पे होस्टेड होगा. डू यू रिमेंबर ऑर्कुट? ऑर्कुट एक एप्लीकेशन हुआ करती थी. yes sir. राइट. तो ऑर्कुट जो थी वो डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशन थी. तो वो किस तरह के सर्वर पे होस्टेड होगी? आईएएस सर्वर पर. राइट. यस. करेक्ट. अच्छा, जो जावा बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं वो कौन से सर्वर पे होस्टेड होती हैं? खैर वो तो किसी भी हो सकती हैं, बट उनका सर्वर कौन सा होता है मेनली? अपाचे, टॉमकैट. यस, टॉमकैट, अपाचे. राइट. करेक्ट. सिमिलरली जो मीन स्टैक बेस्ड एप्लीकेशन है वो किस सर्वर पे होस्ट होंगी? नोड. एग्जैक्टली, ऑब्वियसली नोड. तो इसीलिए हम नोड एज अ सर्वर यूज कर रहे हैं. राइट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नोड का एक पहला यूज तो हो गया कि नोड इज यूज लाइक अ सर्वर. नोड इज यूज लाइक अ सर्वर. वी यूज नोड लाइक अ सर्वर. तो इसीलिए मुझे नोड चाहिए. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज नोड, व्हाई वी यूज इट. और नोड जो है बहुत like AWS and there's a difference between AWS and Node. नहीं. AWS एक प्लेटफॉर्म है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. सी, AWS आपका एक सर्वर है, मतलब एक सर्वर स्पेस है. यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं इसको थोड़ा लेस टेक्निकल करते हैं. AWS पर आप अपना लिनक्स सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो, आप अपना नोड सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो, आप IIS सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो. AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग है. इसके पास बहुत सारे सर्वर्स की सीरीज है. तो इसके पास सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज इसके पास कैपेसिटी है कि ये 100 IIS सर्वर बना सकता है, 100 लेट्स से टॉमकैट अपाचे सर्वर बना सकता है, 100 ये जो है व्हाट डू कॉल इट आपके लिनक्स यूनिक्स सर्वर बना सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये सब ये काम क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारी डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशन हम IIS पे होस्ट कर सकें, मीन स्टैक बेस्ड एप्लीकेशन नोड पे होस्ट कर सकें. डिड यू गेट माय पॉइंट? एक सर्वर प्रोवाइडर, एक सर्वर एक तरह की एप्लीकेशन, एक टाइप की एप्लीकेशन को ही होस्ट करता है. अगर IIS सर्वर होगा तो वो IIS या डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशन को ही होस्ट करेगा. अगर टॉमकैट अपाचे होगा तो वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन को होस्ट करेगा. अगर आपका लिनक्स यूनिक्स होगा तो ये भी जो है आपकी जावा बेस्ड एप्लीकेशन को होस्ट कर सकता है. करेक्ट. बट AWS क्या है? AWS ऐसे ही सर्वर्स का कलेक्शन है, क्लस्टर है. मेरी बात समझ में आई? Yes sir. Yes sir. अच्छा चलो, Yes. एक और नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ. नॉन टेक्निकल एग्जांपल इज आपने कई सिटीज देखी होंगी, मतलब आपकी अपनी सिटीज में क्या होगा, आपकी कुछ मार्केट्स होंगी लेट्स से जो क्लोथ्स के लिए फेमस है. राइट. मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, आप कभी नहीं भूलोगे. जैसे कुछ एप्लीकेशन आपके कुछ सिटी की कुछ मार्केट्स होंगी जो क्लोथ मार्केट्स हैं, कुछ जो है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, कुछ जो है लेट्स से कार एसेसरी के लिए हैं, कुछ जो है इलेक्ट्रिकल्स के लिए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं. डू यू एग्री और नॉट? ऐसे होता है कि नहीं होता हर सिटी में? Yes. Team, I Yes. wanted to Yes, see yes sir. or no from all of you.
Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो ये तो हो गया सर्वर्स, ये तो हो गया सर्वर्स, ये एग्जांपल हो गया सर्वर्स का। क्लाउड क्या हो गया? जैसे मॉल होता है, अब एक मॉल, अब अगर आप बहुत बड़ा कोई मॉल देखो, तो मॉल में क्या होता है? मॉल में हर तरह की शॉप्स होती है, मींस यू विल गेट शॉप्स, राइट, रिलेटेड टू ऑल ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, राइट, क्लोथ्स, एवरीथिंग, गैजेट्स, राइट। तो AWS आपका एक समझो मॉल है, इट्स अ मॉल ऑफ ऑल सर्वर्स, जो अलग अलग लोकेशंस पे, रीजन्स पे, करेक्ट, हैं। सो ऐसा हो सकता है कि जब मैं AWS में अपना मीन स्टैक एप्लीकेशन होस्ट करूं, तो मुझे AWS में एक सर्वर लेना पड़े, हो सकता है, मतलब ये करना पड़ेगा, आई नीड टू परचेज अ सर्वर। तो मेरे लिए वो एक सर्वर जनरेट करेंगे, करेक्ट। और जब सर्वर मैं जनरेट करूंगा, इनफैक्ट मैं ही सर्वर जनरेट करूंगा, तो मेरे को ऑप्शन देंगे कि आपको किस रीजन में आपको सर्वर चाहिए, किस रीजन से सर्वर चाहिए, राइट। तो मैं रीजन सेलेक्ट कर सकता हूं, जैसे मैं इंडिया में हूं, तो मैं एशिया रीजन से सर्वर सेलेक्ट करूंगा AWS में। कोई यूएस में है, तो वो यूएस रीजन का जो है सर्वर जो है एक्सेप्ट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yeah. टीम, ट्रस्ट मी, दिस इज आल्सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब एक मॉल लेते हैं, सपोज बिग बाजार फॉर एग्जांपल। तो बिग बाजार तो एक सिटी में मे बी 20 बिग बाजार होंगे, 25 बिग बाजार होंगे, करेक्ट। आप कौन से बिग बाजार जाओगे? जो नियरेस्ट होगा। सबसे बेस्ट क्यों होगा। नियरेस्ट होगा? अच्छा, क्यों होगा नियरेस्ट? क्यों जाओगे नियरेस्ट वाले पर? Because it's व्हाई? save time and everything. Note Save this time point. Note this point. First is time. Second, to save your time. Second, it's sufficient. Like mostly it's time related only. तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एप्लीकेशन अपनी कोई होस्ट करना चाहता हूं, तो मुझे ऑब्वियसली सर्वर चूज करना पड़ेगा। और मैं अगर इंडिया रीजन का कोई सर्वर चूज करता हूं, तो क्या मेरे लिए भी यही रूल फॉलो होता है? मतलब आईटी में भी यही रूल फॉलो होता है? क्योंकि इंडिया रीजन है, तो मेरे को बेटर और फास्ट सर्विस मिलेगी। व्हाट यू से? यस सर। करेक्ट। तभी तो रीजन्स बनाए, अदरवाइज क्यों रीजन बनाते? नाउ लेट मी गो मोर डीपर इनटू इट। जो फेसबुक के सर्वर्स हैं, फेसबुक के क्लस्टर सर्वर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन सिंगल मशीन। फेसबुक का जो डेटा सेंटर वाला सर्वर है, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स हैं, उसका एक जो है वो बॉम्बे में है, सॉरी एशिया का जो है, माय मिस्टेक, एशिया का जो है वो हैदराबाद में है। व्हाई? आई मीन वन ऑफ द एशियन सर्वर इज इन हैदराबाद। व्हाई? because that need to address all the requests coming from India once it is there in the Singapore, correct? Yes. तो ये सर्वर्स हर रीजन्स में AWS ने वेल अक्रॉस प्लान किए हुए हैं। ओके सर जो हमारी रिक्वेस्ट है, मतलब वो मेन में जाएगी या इसमें जाएगी, हैदराबाद वाले में? नहीं, अगेन दिस इज वन स्टेप अहेड। अब क्या होता है, चलो इसका भी मैं तुम्हें एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। ओके, रियल टाइम एग्जांपल कोई भी इस तरह का जो फुटफॉल वाली प्लेस होती है, जैसे मॉल ही ले लेते हैं एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मॉल। तो अगर मॉल का एग्जांपल लो, तो क्या मॉल का एक ही एंट्री गेट होता है? वैसे जिन मॉल का एक ही एंट्री गेट होता है वो बड़े बेवकूफ होते हैं, उनका आर्किटेक्चर बहुत ही खराब होता है। बट आपने कई मॉल्स देखोगे जिनके मल्टीपल एंट्री गेट्स होते हैं। डू यू एग्री और नॉट? Yes. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द ट्रेड फेयर? आप में से कितने लोग ट्रेड फेयर के बारे में जानते हैं? Delhi Trade Fair. करेक्ट, दिल्ली ट्रेड फेयर आप जानते हो, Yeah. देखा आपने दिल्ली ट्रेड फेयर? सुना है? कितने लोगों ने Yes. सुना? अच्छा, कितनों ने नहीं सुना? सर आई हैवंट। यू हैवंट हर्ड अबाउट ट्रेड फेयर? सो ट्रेड फेयर एक समझो सर मैं एक बहुत, हाँ एग्जांपल बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू। सो अंडरस्टैंड, लाइक ट्रेड फेयर इज अ वेरी ह्यूज प्लेस, जहां पर जो है आप समझो 5 6 10 मॉल, आई गेस इतने भी कम होंगे, समझो 20-25 मॉल्स जितना स्पेस और उतना ही क्राउड ट्रेड फेयर में होता है। ओके, तो उसमें बुक्स का, इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिकल का, कार्स का, राइट, क्लोथ्स का, कॉस्मेटिक्स का, मतलब क्या नहीं, न्यू इन्वेंशंस का।
हमारा एरोनॉटिक्स का, गवर्नमेंट के ट्रेड, गवर्नमेंट की इन्वेंशंस, सब कुछ होता है ट्रेड फेयर में। मतलब एक समझो एक 14 डेज का लगता है और सब कुछ होता है इसके अंदर। 25-30 मॉल्स जितना क्राउड एंड स्पेस ट्रेड फेयर में है, शायद इससे ज्यादा ही होगा। तो नाउ यू इमेजिन जब जब हमारे 20-25 लाख लोग राइट जब ट्रेड फेयर में घुसते हैं एक दिन के अंदर, तो अगर उसका सिर्फ एक गेट है, सो व्हाट डू यू सी, क्या कंडीशन होगी उस दिन? There will be lot of backlogs of crowd. People are standing Deadlock, there waiting for their turn. deadlock, answer is deadlock, correct? तो ऐसा ही आपकी साइट के साथ होता है, ऐसे आपकी साइट के साथ होता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, जस्ट अ मिनट, नो 1 सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट, 1 सेकंड। हेलो, हाँ श्रुति, हो गया। हाँ एक मिनट रुको बस, बिल्ड का मेल नहीं आया होगा, बट बिल्ड हैज ऑलरेडी बीन गिवन। नो आइडिया, ये तो टेस्टिंग करनी थी हमारे को, हमने डेमो बिल्ड दे दिया, टेस्ट नहीं किया। लास्ट मोमेंट बिल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिस्की। मैं एक काम करता हूँ, लेट मी गिव यू द इन्फॉर्मेशन दैट बिल्ड इज गॉन और नॉट, उसके बाद एक बार लू को डेमो दे दो, फिर उसको रात में फिक्स करता हूँ, ठीक है? मैं नावेद को बोलता हूँ, वो फिक्स करता हूँ, ठीक है? Sorry team, deployments are going on for our client, so just busy in that, keep on getting calls for that. So what I was saying is कि यही कंडीशन अगर आपकी वेब एप्लीकेशन के साथ हो, आपने एक साइट बनाई, बहुत प्यार से बनाई, बड़ी अच्छी साइट बनाई, और लोग जो है टूट पड़े उस साइट पर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक साइट बनाओ, ऑनलाइन ऑक्सीजन सिलेंडर बुकिंग.com, ओके, और उसको स्प्रेड कर दो कि बुक योर ऑक्सीजन सिलेंडर फ्रॉम आवर साइट। आपको आइडिया है कितने 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 हिट्स पड़ेंगे आपकी साइट पर? राइट, आपको मिलियंस में हिट पड़ेंगे। बट आपने साइट तो बना दी, बट इज योर साइट कैपेबल इनफ टू हैंडल दीज मेनी रिक्वेस्ट? सो एक्चुअली साइट में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सर्वर में प्रॉब्लम है। आपका सर्वर इतने ज्यादा लॉगिन्स के लिए रेडी है या नहीं है, उसमें स्पेस है या नहीं है? बिकॉज जब एक लॉगिन होता है तो आपके सर्वर में स्पेस बनती है आपके लिए, करेक्ट? आपके सर्वर में स्पेस बनती है आपके लिए। ऐसे अगर मिलियंस ऑफ यूजर लॉगिन करेंगे तो इतनी स्पेस आपके सर्वर में है, या इतनी रिक्वेस्ट आपका सर्वर, बिकॉज जब रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट साइट पर नहीं आती है, रिक्वेस्ट साइट के लिए आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। एक बिल्डिंग है, और फिर दोनों एग्जांपल को क्लब करते हैं, देन वी टॉक अबाउट दिस, ओके? सो इट्स गुड डिस्कशन हैपनिंग। सो ये तो आपका बेस है जो रेडी हो रहा है, राइट? you should feel confident about this. So एक बिल्डिंग एग्जांपल लेते हैं, अगेन सेम थिंग, मैंने ट्रेड फेयर का एग्जांपल लिया, मैं अब एक साथ एक पैरेलल एक बिल्डिंग एग्जांपल लेता हूं। देयर इज अ बिल्डिंग, राइट? उस बिल्डिंग में हमने जो है मेंशन कर दिया कि इस बिल्डिंग में जाके आप ऑक्सीजन सिलेंडर कलेक्ट कर सकते हैं, और नीचे बिठा दिया एक रिसेप्शनिस्ट को, राइट? तो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर तो है ऊपर, बट रिसेप्शनिस्ट एक है। Now, millions of people, I mean thousands of people, not millions, thousands of people came at the reception and asking the receptionist, किस फ्लोर पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, किस फ्लोर पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, किस फ्लोर पे ऑक्सीजन सिलेंडर है? So now you tell me, is your receptionist ready for these many hits? 1, 2, 10, 20, 100, maybe 200 she can handle. But क्या वो हजारों की मतलब लिमिट में, अगर हजारों के काउंट में अगर लोग आते हैं एंड देयर आस्किंग ऑक्सीजन सिलेंडर कहां है, ऑक्सीजन सिलेंडर कहां है, ऑक्सीजन सिलेंडर कहां है? सो शी नोज वेयर इज ऑक्सीजन सिलेंडर, एंड शी नो दी ऑल आर दीज people talking about oxygen cylinder only, but will she be able to guide each and every person where is the oxygen cylinder? मतलब क्या वो इतने मॉब को, इतने फुटफॉल को, इतनी हिट्स को हैंडल कर पाएगी? क्या लगता है आपको? नो सर। बोलो जल्दी बोलो। नहीं कर पाएगी ना? तो तुम मुझे सजेस्ट करो, now I'm concluding this example and seizing the question. अब तुम मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन के लिए तुम क्या करोगे? और ज्यादा रिस्क सर बोर्ड लगा कर लेंगे। नहीं, एक तो बोर्ड लगा दोगे, और
और बोर्ड लगा के लिसन बोर्ड लगा के तो तुम और लोगों को इनवाइट करोगे, वो तो पब्लिसिटी है। मैं कह रहा हूँ आपकी रिसेप्शनिस्ट एक है, फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम, रिसेप्शनिस्ट एक है और thousands of people came to collect oxygen cylinder and she need to address each and every person one by one, तो उसमें तो टाइम बहुत लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो इतने मॉब को अटेंड भी नहीं कर पाएगी, तो तुम क्या करोगे? व्हाट इज द सॉल्यूशन, टेल मी। सर मल्टीपल स्पेशलिस्ट आप बढ़ा देंगे। यस सर। perfect what you will do is you will increase the staff। आप अभी एक काउंटर है, आप 50 काउंटर खोल दोगे, क्योंकि अगर आप 10,000 या 1,000 की बात कर रहे हो, 10,000 तो छोड़ो, वो तो बहुत ही ज्यादा है, 1,000 भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं। अगर तुमसे 1,000 लोग क्वेश्चन पूछने आए, करेक्ट, तो तुम उनको हैंडल नहीं कर सकते हो, तो काउंटर्स बढ़ा दोगे, मे बी तुम 50 काउंटर कर दोगे। अब क्या होगा, वो 1000 जो है 50 में डिवाइड हो गए, तो कितना यूजर पर काउंटर हुआ? 1000 डिवाइडेड बाय 50 कितना हुआ? 20 no 20 or 200 200 no 200 correct 200 so 200 person नहीं रुको 20 सही बोला था पहले मैंने, राइट? 20 so 20 person per counter, so ये सिचुएशन सही है? करेक्ट? यस सर। करेक्ट। तो this is exactly what we do as an architect with our application as well। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को, क्योंकि हमें पता है कि मैंने अगर ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जैसे फेसबुक है, हर वक्त हिट्स पड़ते हैं, करेक्ट? या कोई भी ऐसी साइट है जो बहुत फेमस हो, जिसपे बहुत सारे लोग जो है एंटर करें, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने आपको कहा, आप ही ने एक साइट बनाई कि ऑनलाइन ऑक्सीजन सिलेंडर बुकिंग.com, आज के टाइम में अगर इसे फेसबुक पे स्प्रेड करोगे तो रोज ही कुछ नहीं तो 10-15 हजार हिट्स पड़ेंगी। तो क्या आपका सर्वर इतनी हिट्स को ले सकता है? ऑब्वियसली नहीं ले सकता। तो आप क्या करोगे, आप अपनी एप्लीकेशन को नंबर ऑफ सर्वर्स में डिवाइड कर दोगे। मतलब आप जैसे 5 सर्वर ले लोगे और अपनी एप्लीकेशन को 5 सर्वर में होस्ट कर दोगे, सेम एप्लीकेशन को। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेब फार्मिंग। सो फार्म्स क्या होते हैं? जैसे फार्म्स क्या होते हैं, थ्रू आउट द ग्राउंड, थ्रू आउट द फील्ड सेम तरह की क्रॉप होती है, करेक्ट? तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेब फार्मिंग। मतलब आपके पास एक ही तरह के बहुत सारे फार्म्स हैं, विच मींस एक ही साइट आपकी अलग अलग सर्वर्स पे सेम साइट डिप्लॉयड है। तो इन सब के ऊपर लगता है लोड बैलेंसर, करेक्ट? लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर वो इंसान हो सकता है जो गेट पे खड़ा है और काउंट कर रहा है कि उसने 20 एक काउंटर पे भेज दिए, एक रिसेप्शनिस्ट को भेज दिए, नेक्स्ट 20 सेकंड पे भेज दिए, नेक्स्ट 20 थर्ड पे भेज दिए, नेक्स्ट 20 फोर्थ पे भेज दिए, एंड सो ऑन। ऐसे होगा ना, वरना कौन डायरेक्ट करेगा कि 20 ईच होगा? जब लोग इतने सारे लोग आएंगे तो लोग क्यू थोड़ा बनाते हैं, और क्यू काउंट लगा के थोड़ा बनाते हैं। लोगों को कैसे पता कि एक क्यू में 20 ही लोग होंगे? और अगर पता भी है तो हु फॉलोस, राइट? तो डिजिटल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, लोग हिट्स विल कीप ऑन कमिंग टुवर्ड्स द सर्वर। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, जैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, जैसे हमने टोल ब्रिज पे देखा होगा, टोल ब्रिज पे हमेशा एक बंदा होता है जो रिडायरेक्ट करता है कार्स को, राइट? जैसे एक लेन में अगर ज्यादा कार्स होगी तो दूसरे में रिडायरेक्ट करता है, दूसरे में ज्यादा होगी तो तीसरे में रिडायरेक्ट करता है, करेक्ट टीम? हैव यू सीन दैट और नॉट? आई गेस ये सिनेरियो तो सबने देखा होगा, राइट? यस सर, यस सर। एयरपोर्ट्स में भी ऐसे होता है। जितने लोग एयरपोर्ट्स में गए होंगे तो सिक्योरिटी चेक इन जो होता है, जब एक जगह ज्यादा वो रश हो जाता है तो वो दूसरे चेक इन पे ऑन कर देते हैं, करेक्ट? दूसरे में ज्यादा रश होता है, तीसरे पे कर देते हैं। you have seen multiple time example। what I'm trying to tell you is, जो भी हम डिजिटल वर्ल्ड में पढ़ते हैं या करते हैं या अप्लाई करते हैं, this is all taken from real world, and that is OOPS, object oriented programming structure। यही OOPS है। OOPS is taken from real world। तो रियल वर्ल्ड में जो एग्जांपल है वही हम अपने आईटी वर्ड में लेते हैं। दिस इज OOPS, दिस इज द स्टार्ट ऑफ OOPS। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने एनालाइज किया कि लोड बैलेंसर होता है, राइट? टोल पे खड़ा हुआ वो बंदा जो कार्स को रीडायरेक्ट करता है डिफरेंट लेन में, वो लोड बैलेंसर है, करेक्ट? कार्स क्या है इस केस में? ऑब्जेक्ट हिट्स है, नंबर ऑफ हिट्स हैं। जैसे मैंने लॉगिन किया एप्लीकेशन में, तुमने लॉगिन किया एप्लीकेशन में, किसी और ने लॉगिन किया एप्लीकेशन में, जो नंबर ऑफ हिट्स आ रही हैं वो कार्स हैं, राइट? और टोल बूथ क्या है?
डिफरेंट, एक टोल पे जो मल्टीपल बूथ्स हैं वो क्या है? वो सर्वर्स हैं. Servers. डू यू ऑल एग्री और नॉट? Yeah. Yes. You all agree, right? Anyone who has any doubt? Again, questions. नहीं समझ में आए तो questions. That is what you must do. Else you are gone case. तो ये सर्वर कॉन्सेप्ट क्लियर है. मल्टीपल सर्वर्स मतलब वेब फार्मिंग क्लियर है. लोड बैलेंसर क्लियर है. Yes. Yes. I guess by now you should know, you should understand the AWS also. AWS क्लियर है. तो ऐसे ही सर्वर्स का, बहुत सारे सर्वर्स का जो अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं, उनका जो सर्वर्स का जो ग्रुप है, क्लस्टर है, वो AWS है. राइट? करेक्ट? Yeah. ओके. तो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक नोड से, राइट? सो नोड आपका एक सर्वर है. AWS पे आपका आप मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ नोड सर्वर बना सकते हो. मेरी बात समझे? जैसे अब मीन स्टैक एप्लीकेशन है, सपोज 1000 कंपनीज ने अपनी एप्लीकेशन मीन स्टैक पे बनाई, सो विच मींस AWS पर हमें 1000 सर्वर चाहिए उनको होस्ट करने के लिए. यस और नो? Yeah. करेक्ट? Yes, sir. तो दिस इज व्हाट AWS डज. इट गिव्स यू योर टाइप ऑफ सर्वर ऑन डिमांड. अदरवाइज क्या होगा आपको पता है? अदरवाइज आपको जो है सर्वर कंपनीज को कॉल करना पड़ेगा. जैसे हमने अपनी एप्लीकेशन माइल्स वेब पर होस्ट करी है. हम अपनी मलेशियन बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं, जो मतलब जो मलेशिया में हमारे जो एप्लीकेशन चलती हैं, जो इंडिया में चलती हैं, वो माइल्स वेब पे है. जो मलेशिया में चलती हैं वो एक्साबाइट कंपनी पर है. एक्साबाइट का अपना सर्वर है, माइल्स वेब का अपना सर्वर है. तो हमें सर्वर कंपनीज को कॉल करना पड़ता है और उनको बोलना पड़ता है आई नीड टू परचेज वन सर्वर. तो वो हमारे लिए एक डेडिकेटेड सर्वर बनाते हैं जिसके लिए वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं. करेक्ट? बट AWS पे बेनिफिट क्या है? कुछ डॉलर्स पर मंथ के उस पर चार्ज पर, इनफैक्ट कुछ डॉलर्स में नहीं, अंडर डॉलर ओनली, डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ सर्वर यू वांट और व्हाट स्ट्रेंथ यू वांट. अगर आपको बहुत बड़ा सर्वर चाहिए तो उस हिसाब से कॉस्ट भी होगी. अगर आपको छोटा सर्वर चाहिए, राइट, इफ यू आर अ स्टार्टअप, तो छोटे सर्वर की छोटी कॉस्ट होती है. सो AWS बेसिकली गिव्स यू सर्वर ऑन डिमांड एंड योर टाइप ऑफ सर्वर. तुम्हें नोड सर्वर चाहिए, नोड सर्वर मिलेगा. तुम्हें IS सर्वर चाहिए, IS मिलेगा. तुम्हें टॉमकैट अपाचे चाहिए, वो मिलेगा. तुम्हें लिनक्स यूनिक्स सर्वर चाहिए, तुम्हें वो मिलेगा. राइट? करेक्ट टीम? Yes, sir. Sir, I have a question. प्लीज आस्क. सर ये जो सर्वर्स हैं, इस पे केवल एक ही वेब एप्लीकेशन होस्ट हो सकती है या मल्टीपल वेब एप्लीकेशन होस्ट हो सकती है? मल्टीपल हो सकती है, एक क्यों नहीं हो सर्वर सकती? पर. एक सर्वर मल्टीपल हो सकती है. एक सर्वर पे जैसे हमने अपनी कंपनी के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर लिया हुआ है. वी हैव नॉट शिफ्टेड टू AWS येट because we need dedicated server and we have purchased it for long term period, so we got good discount and all. Okay, तो हम अपने सर्वर पे अनलिमिटेड एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं. राइट? ओके सर. अच्छा चलो, इससे एक और क्वेश्चन निकलता है. आई मीन यू गाइस आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू. बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं. मैं तुम्हारी जगह होता तो जान खा लेता अब तक. तो इस पे एक और चीज निकलती है. अगर सपोज इफ आई कीप ऑन एडिंग एप्लीकेशन ऑन द सेम सर्वर, व्हाट डू यू थिंक विल बी अ ड्रॉबैक? सर्वर CPU हो यूसेज जाएगा. बढ़ जाएगा तो CPU फिर लैग करने सर लगेगा. रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा. गुड, वेरी गुड. सी कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? 3 लोगों ने 3 अलग अलग डिफरेंट आंसर दिए एंड यू ऑल आर करेक्ट. तो इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ. जैसे एक घर लिया, राइट, इंडिविजुअल, आई मीन ओन हाउस. अब ओन हाउस पे व्हाट आई एम डूइंग इज आई कीप ऑन एडिंग पीपल. ठीक है, मेरे पास 4 रूम है. मैंने टेक्निकली देखूं तो मेरे पास एक रूम एक बंदे के लिए है, तो 4 लोग रह सकते हैं. मैंने उसमें 4 और डाल दिए, 8 हो गए. करेक्ट? 4 और डाल दिए, 12 हो गए. 4 और डाल दिए, 16 हो गए. नाउ इन वन सिंगल हाउस आई हैव 16 पीपल. करेक्ट? तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एंड देयर इज ओनली वन गेट, 2 वॉशरूम्स, 1 किचन. क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? Decrease I mean, efficiency. you know, yes, you know the problems, right? Immediately दिमाग चलता है कि वॉशरूम की क्यों, किचन के लिए क्यों, राइट, बाथरूम के लिए क्यों, हर चीज के लिए क्यों. मतलब जैसे जैसे मैं उसे इंक्रीज करता जाऊंगा,
क्योंकि घर तो 2000 स्क्वायर फीट का है, तो आने को तो 100 लोग आ सकते हैं, बट अगर मैं रिसोर्सेज के हिसाब से देखूं तो मुझे उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि कितने लोगों को मैं अकोमोडेट कर सकता हूं, सो दैट द रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली अमंग ऑल द पीपल। सिमिलरली सर्वर का होता है, अगर मेरे सर्वर की सपोज 500 और 1 GB स्पेस ही है, सपोज 1 GB स्पेस है, और मैंने उसमें 1 GB स्पेस में से मैंने 100 साइट्स को अपलोड कर दिया, 100 साइट होस्ट कर दी, 100 साइट्स होस्ट कर दी, तो उस 100 साइट्स का जो मेरे पास, हर साइट का अपना डेटाबेस होगा, हर साइट का अपना यूजर पूल होगा, मतलब यूजर सेशन बनेगा, करेक्ट। अच्छा, हर साइट पे आपकी इमेजेस, वीडियोस, ये सब भी अपलोड डाउनलोड होगी, करेक्ट। तो ऑब्वियसली 1 GB विल नॉट बी गुड इनफ फॉर मी, और हर साइट की परफॉर्मेंस जो है स्लो होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज सर्वर इज वन ओनली, और सेम सर्वर को 100 साइट मींस 100 रिक्वेस्ट के लिए रेडी होना पड़ेगा। Did you all understood my point? Did you all understand my point? Is it clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन मत बना, हाँ, तो क्वेश्चन ये नहीं बनता कि कितने होस्ट कर सकते हैं, कितने भी होस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, करेक्ट। क्योंकि साइट तो सिर्फ 5, 6, 10, 15, 20, 25 MB की होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती है। जो साइट एक्चुअल जो वेब एप्लीकेशन होती है, जब हम उसको होस्ट करते हैं, उसका साइज इट मे नॉट बी मोर देन 15 MB और 20 MB, करेक्ट। क्वेश्चन इज उस पर जब लोग आएंगे वो कितना डेटा कंज्यूम करते हैं, कितना स्पेस कंज्यूम करते हैं, राइट। और उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए इज योर सर्वर रेडी और नॉट, दैट इज द मेन क्वेश्चन, करेक्ट। जैसे एग्जांपल दिया था ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो मेरे पास 1 लाख है, ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे पास 1 लाख है, बट 1000 रिक्वेस्ट एट ए टाइम जो मेरे पास आई, उसको हैंडल करने के लिए मेरा 1 रिसेप्शनिस्ट सफिशिएंट नहीं है, राइट। So I guess now you understood the whole nitty gritty, कैसे चलता है, क्या होता है, बेसिक समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yeah. So this is server. So node is also one kind of server, and ये faster है। अब node की history geography पे आते हैं। node जो है faster है, क्यों faster है? Why node is faster? Because node जो है single thread पे चलता है। single thread मतलब एक काम उठाएगा, एक काम करेगा, एक काम उठाएगा, एक काम करेगा, राइट। मल्टी थ्रेड में क्या होता है, वो सारी रिक्वेस्ट ले लेते हैं, और अगर रिक्वेस्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या ड्रॉबैक होगा? इफ द रिक्वेस्ट इज मोर, व्हाट विल बी द ड्रॉबैक? System will slow. सिस्टम विल स्लो डाउन, सिस्टम विल स्लो डाउन, राइट। नोड सिंगल थ्रेड पे काम करता है, करेक्ट। नोड सिंगल थ्रेड पे काम करता है, और अगर आपको लगता है कि रिक्वेस्ट ज्यादा हो रही हैं, आप नोड सर्वर बढ़ा दो, आई मीन टू से अपनी एप्लीकेशन मल्टीपल नोड सर्वर पे होस्ट कर दो, राइट। व्हेन आई वाज इन डेल we used to have 4 vPods। 4 vPods मतलब 4 सर्वर कलेक्शन। तो जस्ट एक रफली गैस बताओ कि डेल की एप्लीकेशन, डेल की अपनी वेबसाइट है dells.com/support/diagnostic, आप उसकी साइट पे जाके अपनी मशीन रन कर सकते हो, मतलब अपनी मशीन पे वो साइट रन कर सकते हो। वो पूरी की पूरी आपके लैपटॉप को स्कैन करेगी और बताएगी इसमें क्या गड़बड़ है, क्या इशू है, राइट। तो इसकी वजह से डेल की साइट पे बहुत ट्रैफिक रहता है। तो आप मुझे बताओ 4 vPod मींस 4 सर्वर कलेक्टर, 4 सर्वर क्लस्टर्स। तो यू टेल मी, गिव मी अ रफ आइडिया, एक क्लस्टर पर, एक vPod पर कितने सर्वर्स होंगे अंदाजा रफली? Somewhere between 500 to 1000. 500 नहीं to होते 1000. no, इतने नहीं होते, इतना की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो मे बी what you call one vPod contains 16 सर्वर, और ऐसे हमारे पास 64 सर्वर्स होते हैं, और हर सर्वर पे, एंड सी द प्लानिंग, जो फ्रंट एंड पार्ट है, फ्रंट एंड, राइट, जो आपकी फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन है, वो 4 सर्वर पर होती है, एक vPod के अंदर 4 सर्वर पर होती है, और बची हुई जो 12 जो सर्वर्स हैं उन पे हमारी APIs होस्टेड होती हैं। तो इस तरह से वो प्लान करते हैं। ऑब्वियसली इन 4 vPods के ऊपर क्या होगा, एक लोड बैलेंसर होगा, राइट।
सो इट्स ऑल इन योर हैंड। अब जब से AWS आ गया और इजी है। क्यों इजी है? ऑन द फ्लाई। लेट्स से आपने गेमिंग एंड गैम्बलिंग वेबसाइट बनाई, बहुत सारे एग्जांपल है, जस्ट लिसन टू इट केयरफुली। आपने, जैसे मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मेरी थी IVY Comtech, it's basically a gaming and gambling company. Gaming and gambling company means we used to make applications like online games, betting games, right? इस तरह के गेम्स हम बनाते थे यूरोपियन कंपनीज के लिए, यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए। सो लास्ट टू लास्ट ईयर फीफा चल रहा था, डू यू रिमेंबर? 2-3 साल पहले फीफा चल रहा था, पता है कि नहीं पता? वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था, राइट? सो फुटबॉल वर्ल्ड कप था, पूरी दुनिया वर्ल्ड कप देख रही थी, और हम रात के 3-3 बजे तक ये नोट करते थे कि हमारी कितनी कॉल्स जो हैं फेल हो गई। फेल मतलब क्या? कॉल्स फेल होने का मतलब क्या? हिट टाइम बट प्रोसेस नहीं हुई। जैसे क्या प्रोसेस नहीं हुआ? तुम्हारे हिसाब से क्या प्रोसेस नहीं हुआ? क्या हो रहा होगा? क्या यूजर कर रहा होगा? नहीं हो। और क्या? मतलब एक रियल taking their back to, हाँ, go on. user is putting their back, but it is not accepted by the network, or it is not went into the data. कोई अच्छा सा और एग्जांपल बताओगे? आरुषि तुम बताओगे? सर क्लैशेस बिटवीन द कॉल्स, या फिर रिसीव करने में जो क्लैश हो गया, 2-4 कॉल्स एक साथ आना, उस पे सारा एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं एज अ कंज्यूमर मैंने देखा, अरे ये अर्जेंटीना जो है ये इसका रेट अच्छा है, राइट? और मैंने अपने जो है 10 यूरोस मैंने लॉगिन किया, 10 यूरोस में लगा रहा था। जैसे लगाया, ट्रांजेक्शन खत्म होने से पहले मेरा पेज आ गया देयर सम टेक्निकल इशू करके, और वो हट गया, राइट? ये कॉल, मेरी कॉल जो है, करेक्ट, वो मेरी क्या हो गई, राइट? मेरी कॉल क्या बोलते थे, डिस्ट्रॉय हो गई, राइट? कॉल फिनिश हो गई, कॉल खत्म हो गई, मतलब मेरी जो कॉल है ये वेस्ट चली गई, राइट? आई एम फॉरगेटिंग द टेक्निकल वर्ड फॉर इट, आई एम हैविंग अ वेरी बैड हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग द वर्ड्स एट अ वेरी राइट टाइम। तो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं, जैसे कॉल जो है डेड होगी एक तरह से, राइट? कैसे समझो? अब उस यूजर का पैसा तो गया, राइट? अब वो किसको इन्वेस्टिगेट करना है? तो ऐसे हम 3 बजे तक, मतलब होल वर्ल्ड इज एंजॉयिंग द फुटबॉल, and we guys were we guys were checking our vpods. Vpods means our nodes means our servers, कि किस सर्वर पर कितनी कॉल्स आई, राइट? और कितनी उसमें से वेस्ट हो गई। वेस्ट मतलब खराब हो गई, डंप हो गई, जो वर्क नहीं करी। और जिस सर्वर पर हमें ज्यादा लोड होता था, हम ऑन द फ्लाई डेवऑप्स को बोल के उस रीजन में हम ज्यादा नोड्स बढ़ा देते थे। फॉर एग्जांपल हमारी रिक्वेस्ट जो है सपोज अर्जेंटीना से बहुत आ रही है, राइट? तो हम अर्जेंटीना से जो ट्रैफिक आ रहा है उस पर जो नोड्स लगी हुई हैं वो हम और इंक्रीज कर देते थे, करेक्ट? तो ये फायदा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, आप ऑन द स्पॉट सर्वर्स को ऐड कर सकते हो, करेक्ट, राइट? तो ये भी आपने रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखा है, ये भी आपने रियल वर्ल्ड में देखा है। मुझे कोई एक एग्जांपल बताओगे? जैसे एक जगह क्यू लगी हुई है, थिंक एंड देन आंसर। एक जगह क्यू लगी हुई है, वन सेकेंड, मैं तो इस पे तो जा ही नहीं रहा, मैं तो रियल वर्ड बोल रहा हूँ, नॉन टेक्निकल, एब्सोल्युटली नॉन टेक्निकल। एक जगह पे लाइन लगी हुई है, इमीडिएटली दूसरी जगह पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया या लोगों को डाइवर्ट कर दिया। मैंने हिंट भी दिया आपको, एक जगह पे लाइन लगी हुई है, लोग वेट कर रहे हैं, लोगों को देखकर कि लाइन बढ़ती जा रही है, दूसरी जगह लोगों को डाइवर्ट कर दिया कि आप सब इधर आ जाओ। देखो और हिंट दे दिया, एयरपोर्ट। फिर बोला बाकियों को और इधर आ जाओ। एयरपोर्ट का एग्जांपल तो हो चुका है ना, और कोई एग्जांपल? बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत बार देखा होगा आपने, फेस भी किया होगा, लाइन एक्सपीरियंस भी किया होगा। मॉल में काउंटर, बिलिंग काउंटर। क्यों इतना आगे जाना मयूरी? बिलिंग काउंटर, करेक्ट। बिलिंग काउंटर में क्या होता है? आपके सपोज संडे चल रहा है, ह्यूज लाइन है, 15, 20, 25 लोग खड़े हो गए एक लाइन में, राइट? तो क्या होता है, इमीडिएटली दूसरा काउंटर खोल देते हैं कि आप सब सारे इधर आ जाओ पीछे के, राइट? तो ये डायनेमिक काउंटर्स ओपनिंग होगी, ये एग्जांपल होगा डायनेमिक काउंटर ओपनिंग का। यही काम हम लोग डेवऑप्स पे करते हैं, करेक्ट? जिस रीजन में हमें लग रहा है कि रिक्वेस्ट कम है, ज्यादा है, वी नीड मोर सर्वर्स, इमीडिएटली वी स्पिन अप एनवायरनमेंट। स्पिन अप एनवायरनमेंट मींस वी स्पिन अप अ सर्वर और अपनी एप्लीकेशन होस्ट करके डाल देते हैं। एंड देन AWS
AWS load balancer will redirect, correct, the calls to that server as well. So क्या बोलते हो, क्या ये डिफिकल्ट था सब कुछ? क्या ये सारा टेक्निकल डिस्कशन, क्या ये कोई रॉकेट साइंस था? नो सर। नहीं, राइट? ये सब कुछ रियल वर्ल्ड में है। मैं अपने पूरे इस प्रोजेक्ट में जो आपको कराऊंगा या जो मैं कराता हूं या जो मेरे कलीग्स कराते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने पहले सुना या देखा नहीं है। इट इज ऑल टेकन फ्रॉम रियल वर्ल्ड एंड दैट इज द बेसिक oops. oops मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट? तो oops भी आपका रियल वर्ल्ड से ही लिया गया है और दिस इज ऑल oops. तभी मैं बोलता हूं अगर आपको oops पता है तो यू कैन वर्क विद एनी टेक्नोलॉजी। आपके लिए टेक्नोलॉजी बैरियर हो ही नहीं सकता, राइट? करेक्ट? तो वापस आते हैं नोड पे। तो नोड इज माय सर्वर, करेक्ट? इट गिव्स मी प्लेटफॉर्म, it gives me platform so that my application, my web application will run over this platform. Correct, team? ठीक है? Done? You all understood? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यस, मेन काम तो भूल ही गए, इसको डाउनलोड करना। सो जो लेटेस्ट नहीं रिकमेंडेड वर्जन जो है वो लेना, लेटेस्ट मत लेना, क्योंकि लेटेस्ट क्या होता है, बीटा में होता है। बीटा वर्जन मतलब अभी भी उस पे उसको क्लाइंट के लिए ओपन कर दिया और क्लाइंट से फीडबैक मांग रहे हैं कि बताओ ये कैसा है, इसमें क्या ग्लिचेस हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बीटा वर्जन मत लेना, हमेशा रिकमेंडेड वर्जन लेना। रिकमेंडेड मतलब जो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, जिसकी पूरी तरह से टेस्टिंग हो चुकी है एंड देयर इज नो बग इन दैट, करेक्ट? और नोन बग है, मतलब टेस्टेड है, यूज कर रही हैं कंपनीज उसको, यूज कर रहे हैं क्लाइंट्स उसको। सो क्लिक ऑन इट, इट विल डाउनलोड द इंस्टॉलर पैकेज, करेक्ट? इसको डाउनलोड कर दो और उसके बाद डबल क्लिक करो एंड से नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कहीं कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी। द होल नोड सर्वर will install, the node package will install at your system. Did you understand my point? And let me just show you one of my video also where I can show you. Just 1 minute. Screen visible है? The screen visible है? Yes, No, sir. sir. सर No, मैंने तो screen visible, मैंने तो, are you able to see my YouTube? No, I'm able to see the text only. नो I सर have switched off the screen. Yes, sir. Okay. So now I'm showing you my screen. ठीक है, सो ये एक ट्यूटोरियल सीरीज है, आई मीन जस्ट बेसिक सेटअप के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक सेटअप। और मैं इसी को ही सबको फॉरवर्ड करता हूँ कि ये कभी चेंज नहीं होता, ये आज भी ऐसे ही है। नोट एंगुलर के वर्जन चेंज होते हैं, मीन स्टैक के वर्जन चेंज होते हैं, बट बेस वही रहता है, राइट? तो हाउ टू इंस्टॉल मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला लिंक मैं आपको देता हूँ। आई विल गिव यू दिस लिंक, ऑल्दो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, राइट? लर्न नाउ, राइट? करेक्ट? तो इसमें पूरा सेटअप दिया, मतलब इसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इसे कैसे इंस्टॉल करोगे। सी, तो राइट, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं, मतलब तरीका, द वे यू नीड टू इंस्टॉल, एवरीथिंग इज बीन गिवन। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दैट। हाँ, तो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू दिस लिंक। आई एम शेयरिंग इट इन द स्क्रीन, आई मीन द चैट, सॉरी। 1 2 3 paste, 1 2 3 paste, sorry, yeah, okay. Did you receive the link? Good. So आपको क्या इंस्टॉल करना था पहले? नोड। once you install the node, the next thing that you need to do is, hello, Yes. is my voice audible?
Yes, yes. Yes, sir. Team, did you get the link or not? Yes, sir. We Yes, got I the have link. received the link. Okay. I am putting all of you on mute because I am getting the background noises. Okay. Now. Next, what we do is, yeah. Next thing is the editor. So google.com, and then you say visual. Sorry. Visual Studio Code. So when you search for Visual Studio Code, you will get this link, right? So this is the link. You click, and this also I'm going to copy and paste. So this is editor, which is available for Windows, for Mac. I mean, if you have a Mac machine, अगर आपके पास iOS machine है, Mac है, तो आप Mac वाला install करो, otherwise Windows वाला. और make sure you install the installer, not zip. Correct? Installer जो है. I'm sending you this link again. This link is there in the video also, which I shared with you. Okay, team. भाई respond तो क्या करो? Yes, sir. Yeah. ओके सो ये दो एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए. दीज आर द प्री रिक्विजिट बेसिकली, राइट? जैसे आपको अगर MS ऑफिस, अगर आपको वर्ड यूज करना है तो MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, करेक्ट? तभी आप वर्ड यूज कर सकते हो, राइट टीम? आपको कोई गेम खेलना है तो आप उस गेम को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है. जस्ट वांटेड टू शो यू द बेसिक थिंग, राइट? सिमिलरली अगर आपको कोड करना है, आपको ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलप करनी है. ओपन सोर्स मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेमवर्क्स हैं, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क या ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो आपको एडिटर चाहिए, आपको ओपन सोर्स सर्वर चाहिए, तो आपके पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए, राइट? करेक्ट? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओपन सोर्स मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सो मीन आपका एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है. सो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो आपको एडिटर चाहिए, आपको सर्वर चाहिए. तो विजुअल स्टूडियो कोड इज योर एडिटर, जिसमें आप एक्चुअली में कोड लिखोगे, और नोड इज द सर्वर जो आपकी इस ओपन सोर्स एप्लीकेशन को होस्ट करेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. So I guess this is good enough information for today. Agree? अगर इससे थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो ये ऊपर से जाएगी. Do you all agree or not? Yes. आज हमने Yes, आज sir. हमने नोड, सर्वर, बेसिक ऊप्स, आई मीन हमने स्टार्ट नहीं किया बट हमने जिस देखा कि ऊप्स है क्या, कि क्या एग्जांपल आते हैं ऊप्स में, ये हमने देखा, राइट? सो एवरीथिंग is oops basically, right? We have seen servers today, we have understood the cloud computing today, we have understood कि site hosting मतलब कैसे होती है, load balancer क्या होता है, web farming क्या होती है. So basic server platform, correct? ये क्यों जरूरी था? Why this is important? आप जब एक मोबाइल लेने जाते हो तो आप उसके बारे में एक अच्छा खासा होमवर्क करके जाते हो ना, कि भाई ये कि मुझे जो मोबाइल लेना है वो कौन से प्लेटफॉर्म का होगा, उसकी रैम कितनी होगी, राइट? उसमें क्या फीचर्स होंगे, मुझे क्या फीचर्स चाहिए. सिमिलरली व्हेन वी स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, एनी टेक्नोलॉजी, तो हमें उसके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड डिस्कशन बहुत जरूरी होता है, उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिस्कशन बहुत जरूरी होता है, राइट? सो टुडे वी हैव स्टार्टेड विद सर्वर डिस्कशन, करेक्ट? कि सर्वर क्या है, सर्वर क्या होता है, आजकल कंप्यूटिंग चल रहा है, क्लाउड चल रहा है, क्या है क्लाउड, हम किस तरह से डायनेमिकली सर्वर्स को ऐड करते हैं, राइट? और आपने देखा व्हाट यू हैव अंडरस्टूड और ऑब्जर्व्ड इज that it is not at all a rocket science, right? It is the same old principle which is available in real world. So that is why we call oops is real world. So ये सब oops है. Do you all agree or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? No. Anything you want to ask me?
See, I don't mind what rating you give me, okay? Because I'm not here to what do you call rate myself. मुझे क्या चाहिए कि do you have the confidence after each and every session or not? अगर हर एक सेशन के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, then it's a waste of time for you. Trust me. Okay? You getting my point? Yes, sir. हर एक सेशन के बाद you should know a new thing. One, you should have the gradual confidence building as well. तो जैसे कल के सेशन के बाद आपको एक नई चीज आपको सुनने को मिली होगी और आपको और कॉन्फिडेंस आना चाहिए. आज के सेशन के बाद आपको और नॉलेज मिलनी चाहिए और कॉन्फिडेंस आना चाहिए, राइट? अगर ये दो चीजें नहीं हो रही हैं, then it's a waste of time. Okay? So see you tomorrow, team. Correct? Tomorrow same time, 9:15. Make sure by 9:15 you all log in. Don't delay. And this probably may not be the link. Whatever is the link will be the permanent one. जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा वो permanent link होगा, and that you can save it. So on that link only we will be talking and meeting. Okay? Either it is session or it is project discussion. ठीक है team? I will share it on WhatsApp. Okay? And maybe tomorrow or day after, आपका अपना एक Teams group होगा, Teams group, correct? उसी link पर Teams group, जिसमें हम सारी discussion करेंगे. After that group, we will not discuss over WhatsApp. We will be discussing over our Scorpius team. Okay? Okay. ठीक है. Bye team then. Yes. If you don't have any question, please do share your questions, your queries as of now on the WhatsApp group if you have any. Else we'll meet tomorrow. Right? Tomorrow same time. Bye. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir.